ਪੰਜਾਬਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि 29 जुलाई ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। मेरा नाम कुलबीर सिंह ढाबा जी, मैं फैडरेशन का इत्थों का जिहड़ा सीनियर मीत प्रधान हाँ। असी जिहड़ा साडे पंजाब लैवल का पंजाब यूटी मुलाजम पेंशनर साझा फ्रंट है, जिहदे सद्दे ते असी 2 साल हो गए लगभग जिहड़ा साडा फ्रंट बनिया है और उहदे प्रोग्राम असी लगभग इकट्ठे कर रहे हैं। पिछले 29 जुलाई नूं एक महा रैली जिहड़ी पटियाले दे अंदर असी साझे फ्रंट वालों करके आए हैं और सरकार नूं इह दसदा है महा रैली का मतलब 1 लाख तो वध सरकार दी एजेंसियां ये गल कहिंदियां सी बैठण नूं जगह नहीं सी मुलाजमां वास्ते, पूरा अरेंज नहीं कर सके। सरकार दी चूलां लगियां और ये बदौलत सरकार दबाव पाउंदी रही भी ये जिहड़ा पोस्टपोन कर दो 29 वाला, पर फिर भी मुलाजमां दे रोह नूं वेखदे साडे पंजाब दे कन्वीनर साहबानां ने जिहड़ी रैली करवाई और 30 नूं सानूं सरकार ने टाइम दिता, जिहदे विच जिहड़ी मुलाजम सब कमेटी की जिहड़ी मीटिंग हुई मुलाजम जथेबंदियां दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਪਤਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ, ਪਰ 3 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹ 4-4 5-5 6-6 ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਸ਼ੋਰਾਮ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਭਖਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 7ਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ। और 4 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 4 ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਲ ਲੈਣ ਨੇ, 8-8 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। MLA 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ
ਇਹ ਨਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। मेरा नाम केवल कृष्ण सेठी है। अच्छा जी। मैं गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन ज़िला फाजिलका का प्रधान हूँ। ये धरने जो हैं वो पिछले बहुत समय से दिए जा रहे हैं और ये जो पे कमीशन होता है ये हर 10 साल के बाद बैठता है और लोगों को, मुलाजमों को और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि 10 साल के अंतराल में जितनी महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से हमारी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। लेकिन कैप्टन सरकार ने 4.5 साल तक कोई भी इसकी तरफ कोशिश नहीं की और 4.5 साल ज़ाया कर दिए। और फिर जुलाई 20 में ये कह दिया कि हम तो सेंटर के स्केल देंगे, पंजाब वाले स्केल नहीं देंगे। पंजाब सरकार की शुरू से ही ये नीयत रही है कि मुलाजमों और पेंशनरों के पल्ले में कुछ ना डाला जाए और उनकी कटौती जो है की जाए। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पे कमीशन ने जो रिपोर्ट दी वो पहले से ही ऐसा उनको आइडिया दिया गया था कि कम से कम इनको देना है और उसको भी पूरा नहीं किया। जैसे हम पेंशनर्स की बात करें तो मेडिकल फिक्स मेडिकल भत्ता 500 रुपये पहले मिलता था। हम 2000 रुपये की मांग कर रहे थे क्योंकि इस बुढ़ापे में और सारे परिवार के लिए 2000 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, एक आदमी के 500 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो बाकी महीना क्या करें, दवाइयाँ चाहिए हमें। इन मांगों संबंधी किसी उच्च अधिकारी या मंत्री से कोई बात हुई? हाँ, उनसे बात होती है, लेकिन वो एक ही बात कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खजाना नहीं है, या हम वो टाल मटोल की नीति जो है उसको अपनाते हैं। अब क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग ये करते हैं, एक तो हमारा ये जो फिक्स मेडिकल भत्ता है वो 2000 होना चाहिए। पे कमीशन ने 1000 मंजूर किया, इन्होंने फिर भी 500 रुपया ही रखा, तो सिर्फ जो फैक्टर 2.59 है उसके अलावा इन्होंने पेंशनर्स को कुछ नहीं दिया। और 1/12/11 में जिन लोगों को अकाली सरकार ने रिवाइज अनॉमली दूर करते हुए ग्रेड रिवाइज किए थे, उनको 2.25 दे रहे हैं। इससे उनके पल्ले में तो कुछ पड़ता ही नहीं है, तो उनकी तो जेबों से जा रहा है। तो ये जो पेंशनर्स के लिए जो कुछ भी इनको देना चाहिए था नहीं दिया। लेकिन क्योंकि हम जॉइंट फ्रंट की बात करते हैं तो हमारा 142 महीने का डीए का बकाया भी इन्होंने करोड़ों रुपए दबा के रखा। कभी वक्त पर जो है इन्होंने हमें किस्त जो है नहीं दी और ये कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। इसके नतीजे के तौर पर जल सप्लाई में, बिजली बोर्ड में लाखों कर्मचारी जो कि उसमें काम कर रहे थे आउटसोर्सेज में, उनको फिक्स तनख्वाह पर रखा गया। प्राइवेट कंपनी के अधीन होते थे, जब चाहते तब निकाल सकते हैं और 10-10 साल तक इनको पक्का नहीं किया गया। कितने पेंशनर प्रभावित हो रहे हैं इस स्कीमों से?
लगभग जो है 3,70,000, जैसा कि वित्त मंत्री ने खुद कहा है कि पंजाब के अंदर 3,70,000 पेंशनर्स हैं, जिनके ऊपर जो है हमें मतलब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये हमें जो हमारी मांगे थी। हम तो ये कहते हैं रीइंबर्समेंट के बिल आते हैं जल्दी पास नहीं होते, हम कहते हैं कैशलेस सिस्टम शुरू कर दो। अकालियों ने शुरू किया था, उसमें सुधार करके शुरू कर दो। आदमी जाए अपना इलाज कराए और घर में आ जाए। किसी के पास पैसे नहीं होते, वो इलाज कैसे करवाएंगे? अगर आगामी समय में भी आपकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर क्या एक्शन होगा? एक्शन आप देख रहे हैं जैसे ये चल रहा है, ये जॉइंट फ्रंट का है, अकेला पेंशनर्स का नहीं है। मुलाजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। जब तक हम सभी की मुलाजम और पेंशनर की मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये नहीं है कि हमारी कुछ राहत मिली है तो हम चुप करके बैठ जाए। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और बड़ी बात यह है कि जो पुरानी पेंशन इन्होंने बहाल नहीं की, हमारे बच्चे जो हैं नौकरी में आए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि पेंशन खरात नहीं है। पेंशन जो है एक आदमी के लिए जो कि 35 साल 30 साल नौकरी करता है, बुढ़ापे में वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी से बिता सके, अच्छे ढंग से बिता सके, इसलिए उनको देना। ये कोई खरात नहीं है और आपकी मर्ज़ी पर नहीं है, जब चाहो काम कर लो, नियमों के अधीन है, नियमों के अनुसार दो। लेकिन इन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। अब हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। जब वो रिटायर होंगे तो क्या वो फिर से नई नौकरी ढूंढने निकलेंगे, जबकि ना उनके घुटने चलते होंगे, ना कोई उनका शरीर काम करता होगा? तो ये बिल्कुल अन्याय है। आज तक दुनिया में किसी भी मुल्क ने अपने मुलाजमों की पेंशन जो है उसको बंद नहीं किया, और जो शुरू की है कंट्रीब्यूशन वो बिल्कुल नॉमिनल है। वो 10% अपना देते हैं, और अब उन्होंने कहा हम 14 दे देंगे, कभी कहते हैं 10 शामिल करेंगे। जब वो रिटायर होता है तो 60% उसको दे देते हैं, 40% जो है वो अपने शेयरों में लगा देते हैं। उसमें जितना आमदन आती है उसके हिसाब से बड़ी मुश्किल से 2-2, 3-3 हज़ार रुपया पेंशन बनती है। तो इस ज़माने में अगर आपको 2 कमरे किराए पे लेने हो तो आप वो इतना किराए पे नहीं ले सकते। तो ये उनके साथ बिल्कुल अन्याय है, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी और जवानी लगा दी। ये हमारी संपत्ति है, हमारी जवानी जो हमने सरकार के लिए लगाई है। तो सरकार का ये फ़र्ज़ है कि वो हमारे लिए भी सोचे। और मुलाजमों के बगैर सरकार नहीं चलती, मुलाजमों के बगैर सरकार की शान नहीं बनती, उसकी छवि नहीं बनती। जितनी योजनाएं हैं वो मुलाजम लोग ही क्रियान्वित करते हैं और वो ही बाद में पेंशनर बनते हैं। तो मुलाजमों और पेंशनरों के प्रति इनको अपना रवैया बदलना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि पंजाब तरक्की करे, अगर ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग खुशहाल हों, तो ये इनको अपना नज़रिया बदल करके ठीक ढंग से जो है हमारी मांगों को मानना चाहिए। अब अकाली सरकार ने बिल पास किया रेगुलराइजेशन का, इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। हाँ, अच्छा बिल बनाएंगे। मैंने कहा भी अच्छा बनाना है तो इसमें कुछ अच्छी बातें जोड़ दो। ये अपना पल्ला छुड़ाना चाहते थे, इन्होंने उसको तोड़ दिया। अब जो ये कह रहे हैं हम बना रहे हैं, उसमें है कि 3 साल के परक पीरियड के बाद कच्चे मुलाजमों को पक्का किया जाए। अब ये कहते हैं 10 साल के बाद उनको पक्का किया जाए। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो इनके खजाने में कमी नहीं है किसी चीज़ में, सर इनकी नीयत में खोट है। इनके पास है, देना नहीं चाहते, मुलाजमों को नहीं देना चाहते, पेंशनरों को नहीं देते, और बाकियों के लिए सब कुछ है। अपने MLAs के लिए उनको चहेते महकमे देते हैं, और जिस तरह की वो गड़बड़ करते हैं आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और पुराने जो MLAs हैं वो 5-5 पेंशनें ले रहे, और यहाँ पर एक पेंशन देने में भी इनको जो 35 साल तक काम करता है उसको नहीं देना चाहते। एक नगर का प्रधान बने उसकी भी पेंशन लेगा,
फिर एमएलए बन जाए उसकी पेंशन लेगा, फिर एमपी बन जाए उसकी बन, जितनी बार वो बनेगा उतनी बार पेंशन। तो ये बात जो है किसी भी के आदमी के समझ में नहीं आती है। तो कच्चे मुलाजमों को पक्का करना चाहिए, ताकि क्या वो एक आदमी रिटायर होने के बाद अगले दिन फिर सोचेगा कि मैं कहाँ जा पर मजदूरी करूँगा, जब उसने इतने साल सरकार की नौकरी की। इस तरह से मुलाजम और पेंशन हम इनके व्यवहार से और जो कुछ ये दे रहे हैं ये बिल्कुल मिनिमम है, और उसको भी ये मिनिमाइज कर रहे हैं। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ।